Yes, continuing with the previous lecture. Now is position vector. What is position vector? A vector drawn from origin to the position of a particle at any instant in a plane is called position vector. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसका ये ओरिजिन है. तो किसी पार्टिकल की किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू origin, that is a vector drawn from origin to the position of a particle at any instant of time is known as position vector. So the position of a particle is p at any instant of time t, then its position vector is op, which is generally represented by r vector. ठीक है. Then op is equal to r is the position vector of particle p at any instant t. Now what is displacement vector? The displacement vector of a moving particle in a given interval of time is directed line segment from the initial to the final position of the particle. Suppose a particle is moving. So what is displacement vector? It is a displacement vector of a moving particle in a given interval of time is a directed line segment. A directed line segment. Suppose particle is at any time it is at p. At another time t dash it is at p1. Then a directed line, that is directed means line, directed means its direction from initial to final position. Then a directed line segment from initial to the final position of the particle. This is known as displacement vector. So position vector is of a point with respect to origin, and displacement vector is a straight line segment drawn from directed line segment drawn from initial to the final position. So this is not with respect to origin. So let us consider a particle moving in xy plane. Let at any instant t the position of the particle is p. So its position is p. Its position p. So what is its position vector op, which is equal to r1. Let at time t dash the particle moves to new position p1. Another time t dash से particle यहाँ तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, p1 पे आ गया. So that the position vector of p1 is op1, which is equal to vector r2. Suppose किया हमने r1 r2. Therefore, what is the displacement vector of the particle in time interval t dash minus t? Its displacement vector is initial to final position, that is pp1, which is equal to होगा op1 minus op. That is कोई भी वेक्टर है, it is the difference of two position vectors, that is position vector of head. जो ये pp1 है इसके हेड की पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल. पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड इज op1, position vector of tail is op, that is r2 minus r1. Explaining again, what is the displacement vector of the particle in time interval t dash minus t? Its displacement vector is p1p, which is equal to is pp1, which is equal to position vector of head. Head is p1, that is op1 minus position vector of tail. तो वेक्टर को हमेशा ऐसे ही लिखना है, position vector of head minus position vector of tail. तो position vector of head is r2 and position vector of tail is r1. r2 minus r1. This is displacement vector. Next is multiplication of a vector by a real number. अगर किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? The multiplication of a vector by scalar quantity. Scalar means which is not vector, that is real, and gives a new vector na. The multiplication of a vector by a scalar quantity n gives a new vector na, n times a, whose magnitude is n times the magnitude of given vector. जिसका मैग्नीट्यूड जो है, जो माप है, जो लेंथ है, वो n टाइम्स गिवन ऑफ गिवन वेक्टर ए होगी. वाइल द डायरेक्शन इज सेम, या डायरेक्शन सेम होगी और अपोजिट टू दैट ऑफ ए, या ए के अपोजिट होगी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर. डिपेंड करेगा n पॉजिटिव है या n नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर 2, अगर वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, देन वी गेट ए न्यू वेक्टर, हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा.
b which is equal to 2a means length of b is 2 times length of a, length of b is 2 times length of a and here this is positive number. ठीक है, magnitude of b is twice magnitude of a while direction is same because it's a positive number. Positive number direction is same as that of a. Again if vector a is multiplied by a real number n is equal to -2, अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू वेक्टर इज b, न्यू वेक्टर इज b whose मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस दैट ऑफ a, जिसका मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड a का ट्वाइस होगा बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ a, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी a के क्योंकि दिस इज ए नेगेटिव रियल नंबर, वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय नेगेटिव रियल नंबर्स. तो अगर किसी को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, दैट मच टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगी. अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ स्केलर्स और वेक्टर्स. स्केलर्स और वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जा सकता है. 2 और मोर स्केलर्स और वेक्टर्स कैन बी एडिड. 2 स्केलर्स या वेक्टर्स को तभी ऐड किया जा सकता है इफ दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, मास कैनॉट बी एडेड टू लेंथ. वी कैनॉट ऐड 2 किलोग्राम ऑफ शुगर टू 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ बिकॉज बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. वी कैनॉट ऐड स्पीड टू एक्सेलरेशन. स्पीड को हम एक्सेलरेशन में ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. तो 2 वेक्टर्स या 2 स्केलर्स तभी ऐड हो सकते हैं अगर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. ए स्केलर कैन नॉट बी एडेड टू ए वेक्टर. एक स्केलर को हम एक वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते बिकॉज स्केलर हैज मैग्नीट्यूड ओनली. स्केलर का केवल मैग्नीट्यूड होता है बट वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और वेक्टर की दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. नेक्स्ट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स. अब स्केलर्स की एडिशन तो आपने पढ़ी है लोअर क्लासेस से लेकर अभी तक. वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि वेक्टर्स में 2 चीजें ऐड होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ए सिंगल वेक्टर. 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर आएगा विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, जो कि वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो दोनों वेक्टर्स इकट्ठा कर रहे हैं. ठीक है, द इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर, 2 वेक्टर इकट्ठा कर रहे हैं. ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर आएगा जिसका इफेक्ट वही होगा जो कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर जो है इंडिविजुअली इकट्ठा कर रहे हैं, अगर इकट्ठा लग जाए. ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक ऑपरेशंस विद स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर मीनिंगफुल. एडिंग एनी 2 स्केलर्स, कह रहा है किसी भी 2 स्केलर्स को ऐड करना, क्या ये मीनिंगफुल है? नो, क्योंकि 2 स्केलर्स कैन बी एडेड ओनली इफ दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी. 2 स्केलर्स को तभी ऐड किया जा सकता है अगर वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल मास कैन नॉट बी एडेड टू टाइम. अब मास को टाइम में ऐड नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते 2 किलोग्राम शुगर में 2 घंटे ऐड कर दें, 2 आवर्स को ऐड कर दो, दे कैन नॉट बी एडेड. सेकेंड है एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन. ठीक है, वेक्टर को स्केलर में ऐड करना है, उनकी डायमेंशन सेम है. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है. तो स्केलर कैन नॉट बी एडेड टू ए वेक्टर, ये भी नहीं हो सकता. स्केलर कैन नॉट बी एडेड टू ए वेक्टर इवन ऑफ सेम डायमेंशंस बिकॉज ए वेक्टर हैज ए डायरेक्शन while a scalar has no direction. For example, speed cannot be added to velocity. हम स्पीड को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते बिकॉज स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट वेलोसिटी हैज डायरेक्शन आल्सो. थर्ड इज मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर. किसी भी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो सकता है. यस, इट कैन बी मल्टीप्लाइड. वी कैन मल्टीप्लाइड एनी वेक्टर बाय ए स्केलर. फॉर एग्जाम्पल, when we multiply mass, mass is a scalar, by acceleration, acceleration is a vector. We multiply mass, mass is a scalar, acceleration is a vector. We get force which is a vector. So here we are multiplying a scalar with a vector. So we can multiply a vector by any vector by a scalar. It is possible, it is meaningful. For example, I have given this example. Next D है multiplying any 2 scalars.
किसी भी दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, वी कैन मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर्स। जैसे व्हेन वी मल्टीप्लाई स्पीड स्केलर विद टाइम, स्पीड और स्केलर टाइम दोनों ही स्केलर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो वी गेट अनदर स्केलर। तो वी कैन मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर्स। एंड द नेक्स्ट इज एडिंग एनी टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना। नो, एनी टू वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड। Two vectors can be added if they represent the same physical quantity, and they can be added by using law of vector addition, which we will discuss later on. For example, velocity cannot be added to force. We cannot add velocity to force. Velocity को force में add नहीं किया जा सकता। Velocity भी vector है, force भी vector है, but velocity and force are two डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, फोर्स के क्या होते हैं? न्यूटन। तो दे बोथ कैन नॉट बी एडिड। टू एनी टू वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड। टू वेक्टर्स कैन बी एडिड इफ दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, एंड दे कैन बी एडिड बाय द लॉ बाय यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट इज एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। एक वेक्टर में उसके कंपोनेंट को ऐड करना। तो कंपोनेंट्स वी विल स्टडी आफ्टर दिस लेक्चर। तो ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स हैं और उनकी डायमेंशंस भी सेम होगी क्योंकि उसी वेक्टर का कंपोनेंट है। ठीक है, बोथ आर वेक्टर्स ऑफ सेम डायमेंशंस। तो टू वेक्टर्स कैन बी एडिड इफ द डायमेंशंस आर सेम। तो दिस वाज ए क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, दिस फिनिशेस your introduction to vectors. After this there is a assignment which you are to send after reading this out.